Hello everyone, welcome back to my channel. So I am here once again with the description of important things that happened today at my workplace. As you already know that I am CCA in charge of my school, so I receive so many letters to conduct various co-scholastic activities on daily basis. In Navodaya emphasizes on the importance of both स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज़। नवोदय में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे कराई जाती हैं, जिससे बच्चों का ओवरऑल और यू कैन से होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, टीम स्पिरिट, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग जैसी और बहुत सारी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। तो आज मैंने अपने क्लास में स्टोरी टेलिंग कंपटीशन कराई, जिसमें इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें से जो बेस्ट वीडियो रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन हमको CBSE ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन जो निम्न श्रेणी के भिखारी हैं उन्हें घर में नहीं आने दिया जाता, क्योंकि वह सोचते हैं कि वो उन्हें घर में चोरी कर लेंगे। इसके अलावा वह अपनी कठिनाइयों के बारे में बताता है कि उसे वहाँ जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, बहुत तेज धूप होती है और एक बार ऐसा होता है कि उसका घोड़ा वो अपने घोड़े में अपने दोस्तों में सवारी कर रहा होता है, तो जो उसका घोड़ा होता है वो बिछड़ जाता है और उसके बाद उसको अपने दोस्त को ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। Vartika from class 9. Today I am going to tell you a story. The topic of my story is Fate Leads to Achievement. Once in a kingdom there was a king which had three sons, eldest, middlest and youngest. There was a forest in which a mysterious flower was there, which was full of gold. So the king ordered his sons to bring that flower. So the eldest son went to the jungle and he met with a cat which was very strange. So the cat told him to follow the instruction which the cat said to him, but the eldest one refused and went to the wrong way and never came back. The middlest one done the same as well as the eldest one. The youngest one was kind and he just followed the instruction which the cat gave. So there was a first stage in which there was two places to live. So there was a hut and a bungalow. The cat told him to live at the hut and the man agreed and went to the hut. The second stage was at the morning. Second stage they went. There was two persons. He had to choose. First one was rich and he was calling me to do party and have fun with him. Second was wounded and helpless and asking for help. So the man was kind and the youngest man helped him. And then the second stage was clear. The third stage was they went to the jungle and then he plucked the flower, but the flower wasn't coming out. So the cat was in the cat neck. There was a hanging knife. So he took the knife and plucked the flower, and then the cat told him to kill the cat with the knife, but the prince said no. But that cat told trust her, and then he killed the cat, and cat turned out to be our princess, and then they married together and lived happily. Thank you. मैं यशवी ओली कक्षा 9वीं की छात्रा जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत से आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है अतिथि देवो भव। एक गांव था पलमसर, जिसमें एक विजय नाम का लड़का रहता था। वह अपनी माँ के साथ उस गाँव में रहता था। वह एक जमींदार था। पलमसर गाँव संसाधन से परिपूर्ण था। वह एक स्वार्थी इंसान था। तो जब भी उसके घर में कोई मेहमान या अतिथि आते थे, वह सभी का अनादर करता था और उन्हें कभी भी सम्मान नहीं देता था। एक दिन कुछ अतिथि उसके घर आते हैं और उससे कहते हैं, उसके पास आते हैं, तो वह उनका अपमान करता है और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनको भगा देता है, गरीब कहता है। और ठीक उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी, जिसके कारण उसी शाम उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसे अस्पताल में भर्ती करना होता है। जिसके फिर उस दिन जो सरकारी अस्पताल थे किसी कारणवश बंद थे, तो उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो वहाँ पर डॉक्टर बहुत पैसा मांग रहे थे, तो काउंटर बॉय के पास जब वो सब अपने रिश्तेदारों से पूछता है कि उसके पास पैसे की कमी होती है, क्योंकि वह स्वार्थ कर रहा था, तो ज़मींदार का काम अभी उसका ठीक नहीं चल रहा था, तो इसके कारण जब वो सबसे पैसे मांगता है तो वो सब उसे मना कर देते हैं। तो अंततः वो काउंटर बॉय के पास जाकर कहता है कि मैं माफ़ करना, मैं जब पैसे जमा नहीं कर सकता। तो फिर काउंटर बॉय कहता है आपके नाम से पैसे यहाँ पे जमा हो गए हैं, तो आप चिंता मत करिए। तो कहता है किसने करे, तो वो
छत्ते पर जाकर देखता है तो वहाँ पे वही लोग आए होते जो सुबह उसके घर में आए थे और उसके घर में आए थे वही लोग। फिर उनसे माफ़ी मांगता और कहता है कि आप मेरे को माफ़ करें, आपने मेरी आंखें खोल दी, आज से मैं किसी भी अतिथि का अपमान नहीं करूँगा और आप सभी लोगों का स्वागत करूँगा। मेरे घर में आप लोग हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी माँ बच गई आज। धन्यवाद। इसके बाद मुझे अपने क्लास का रिज़ल्ट बनाना था, तो मैं उस काम में लग गई और अपना रिज़ल्ट प्रिपेयर करने लग गई। इसके बाद शाम को इवनिंग असेंबली के बाद हमारे लाइब्रेरी में एक छोटा सा फेयरवेल प्रोग्राम रखा गया था। हमारे वाइस प्रिंसिपल सर के रिटायरमेंट के बाद आपने रिटायरमेंट वाली वीडियो देखी ही होगी। हमारे नियर बाई स्कूल JNV रुद्रपुर से वाइस प्रिंसिपल सर को यहाँ अटैच किया गया था और वो यहाँ पे 18 डेज़ के लिए इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहे थे। फिर एक लेटर आ गया जिसमें हमारे वाइस प्रिंसिपल सर एक और नए सर आ गए हैं। ये JNV मथुरा से प्रमोट होके यहाँ आए हैं। वो वहाँ पे JNV मथुरा में एज PGT मैथमेटिक्स काम कर रहे थे, तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन हुआ है और अब वो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे रेगुलर बेसिस पे आए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 वाइस प्रिंसिपल एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए 3 वाइस प्रिंसिपल एक साथ बैठे हैं, एक जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, एक जो हमारे यहाँ आए थे अटैच होके फॉर फ्यू डेज़, और उनके जस्ट बगल में जो बैठे हैं ये हमारे रेगुलर वाइस प्रिंसिपल अभी प्रमोट होके आए हैं और वही अब यहाँ पे हमारे स्कूल को देखेंगे। तो ये बड़ा ही अजीब सा कोइंसिडेंस था कि हमारे स्कूल में 3 वाइस प्रिंसिपल एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।